Hello students, welcome to English lecture. Today we shall be starting 9th standard English and the name of the chapter is A True Story of Sea Turtles. So this lesson is written by Bhau Kadare and he is the founder of Sahyadri Nisarg Mitra which was originated in 1992 and he is the member of Maharashtra Advisory Board also. So in this lesson he has shared his one of the most important experience of his project which is about turtles. So let's begin the lesson. A true story of sea turtles. Turtles is a kind of creature which is like tortoise, but it is very small in size. So we were surveying the white-bellied sea eagles in the summer that years, and as we roamed the coast, one of the volunteers in our team saw some shallow pits with white egg cells nearby. Inquiries with the villagers revealed that they were turtles' eggs, and this came as a surprise. And we had never come across turtle eggs in our walk along the beaches of the Konkan in all these years, and we decided to study this unusual occurrence further. We learned that the beach where we had found the egg cells had been shielded to the public for nearly 1 month after people smuggling silver bricks were caught in that area. But that we learned further shocked us to the core. So what Bhau is sharing that we were surveying means he as well as his volunteers. So what is the meaning of volunteers? Volunteers a person who do something without a pet. So here his team as well as Bhau decided, and they were surveying means they were searching, examining, observing what the white bellied means stomach किसको सर्च कर रहे थे सी एगल्स इन द समर दैट ईयर वो उस साल एक वाइट बेलीड सी एगल्स को सर्च कर रहे थे दे वर सर्वेइंग एग्जामिन कर रहे थे ऑब्जर्व कर रहे थे. So as we roamed the coast, while they were walking through the coast, what one of the volunteers in our team saw some shallow pits. Shallow means what? Not very deep. Pits means gaddha. A sign you can say symbol with wide egg cells nearby. उन्होंने क्या देखा एक white shell देखा nearby, and while they asked इंक्वायरीज मतलब पूछना विद द विलेजर्स वहाँ के लोगों को पूछा तो उन्होंने क्या बोला रिवील्ड मतलब राज खोलना एक्चुअली टू से समथिंग विच इज़ वेरी सीक्रेट. उन्होंने बोला कि वो एग्स जो हैं वो टर्टल्स के हैं एंड दिस केम एज अ सरप्राइज और उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था बिकॉज वी हैड नेवर कम अक्रॉस टर्टल एग्स इन आवर वॉक थ्रू द बीचेस ऑफ कोंकण इन ऑल दीज ईयर्स. क्योंकि उन्होंने वाइल दे वर वॉकिंग थ्रू द बीचेस ऑफ कोंकण दे नेवर सॉ दिस kind of eggs of the turtles. So we decided to study this unusual occurrence further. So what they decided to study, they decided to know of this very unusual means which is not very common occurrence means what is going to be happen. वो उस चीज़ के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु हो गए हैं. सो वी लर्न दैट द बीच वेयर वी हैड फाउंड द एग सेल had been sold to the public for nearly 1 month after people smuggling silver bricks were caught in that area. So what they got ki it was sealed, the beach was sealed. Why? Because they found some smugglers were doing the smuggling of what silver bricks which was caught in that area. For that sake it was sealed. But what they learnt actually what they got from there it was really very shocking to the core. अगर वहाँ पे जो और न्यूज़ मिली it was really shocking. core मतलब होता है center. So turtles nest along the entire coastline of our states. There are a few people in
every village who keep coming the beach in the early hours of the morning throughout the years when the female turtle comes on shore to the nest and to lay eggs, and she lives behind a trail just like a tractor wheel on the sand. What they got, the turtles nest along the entire coastline of our states. States indicates here Maharashtra states, and coastline they are in, it indicates Sahyadri coastline, Konkan coastline. And what they found, that few people in every village who keep combing means searching. कुछ लोग जो गांव के वो सर्च करते रहते थे क्या, बीच पे अर्ली आवर्स इन द मॉर्निंग, सब बहुत पहले सुबह सुबह उठ करके सर्च करते रहते पूरे साल। क्या सर्च करते रहते कि व्हेन द फीमेल टर्टल्स कम्स ऑन शोर, जब फीमेल टर्टल आएगी शोर पर, मतलब शोर मतलब होता है समुद्र का किनारा, वहाँ पर आएगी टू ले दी एग्स को ले करने के लिए, मतलब अंडे देने के लिए। शी लिव्स बिहाइंड अ ट्रेल जस्ट लाइक अ ट्रैक ऑफ वेल ऑन द सैंड, तो वो एक रास्ता छोड़ जाती है, वेल के जैसा एक रास्ता छोड़ जाती है। And the egg hunters follow this trail right up to the nest which is about half a meter deep. और उसके बाद the egg hunters follow, और जो egg hunters होते हैं, hunters मतलब शिकारी, एग्स को चुराने वाले जो होते हैं, उस ट्रेल को जहाँ से वो टर्टल आती है उस ट्रेल को फॉलो करते हैं, जो नियरली कितना होता है, अबाउट हाफ मीटर डीप होता है, गड्ढा होता है, मतलब इतना गहरा होता है, वो उसको फॉलो करते हैं। एंड दे डिग अप दी नेक्स्ट, और वो डिग अप करते हैं मतलब खोदते हैं नेक्स्ट को, और दे स्टील, वो चुरा लेते हैं क्या, 100 and 150 एग्स को चुरा लेते हैं, विच वर लेड बाई, जो कि लेड किया जाता है, जो लेड ले करी रहती है, कौन, टर्टल इनसाइड, उसके अंदर में ले की रहती है, उसको चुरा लेते हैं। दिस एग्स आर देन एंटायर इटेन और आर सोल्ड इन द मार्केट, या तो वो चुरा करके बेच देते हैं या खा जाते हैं। इफ़ द टर्टल इज स्पॉटेड वाइल इट इज स्टिल लेइंग एग्स, और जब कभी वो लोग देखते हैं कि टर्टल्स एग्स को ले कर रही है, इट इज़ अलाउड टू लीव टिल द लेइंग इज़ ओवर, और वो छोड़ देते हैं कि टर्टल्स को लेट इट बी ले दी एग्स, वो एग्स को ले कर ले। एंड एज सुन एज द एग्स आर लेड, और जैसे ही एज सुन एज इज़ अ फ्रेज, और जैसे ही वो एग्स को लेड कर लेती है, मतलब अंडे को अंडे आ जाते हैं, इट इज़ कॉट, वो तुरंत उसको ले लेते हैं। कॉट मीन्स होता है कैच कर लेते हैं, ले लेते हैं। एंड इट इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ कैच, कॉट, ओके। सो एंड देन किल्ड एंड इटेन, और उसको चुरा करके खा लेते हैं, या तो फिर मार देते हैं या बेच देते हैं। Killed and eaten, and this ruthless practice is observed in all parts of the world. और ये जो cruel है, ruthless मतलब cruel, practice मतलब work, it is observed, it is examined, it is seen in all the parts of the world. ये दुनिया के हर जगह पे देखा जाता है। However, लेकिन in India, sea turtles are being given protection by including them under Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act 1972. लेकिन इंडिया में it is not happen because it is protected by the Schedule 1 under the Indian Wildlife Protection Act 1972. That means the turtles have been given as much protection as टाइगर्स, क्योंकि इसको सिमिलरली प्रोटेक्शन दिया जाता है जितना कि टाइगर्स को दिया जाता है। देयर फॉर ऑल दिस बिजनेस ऑफ गैदरिंग टर्टल्स एग्स एंड द किलिंग टर्टल्स इज कैरिड ऑन इन अ सीक्रेट हस मैनर, इसीलिए ये लोग चोरी चोरी से एग्स को चुराते हैं और उसको बाद में मार देते हैं या बेच देते हैं। दिस इंफॉर्मेशन वॉज डिस्ट्रेसिंग, वी बिगेन टू थिंक सीरियसली अबाउट इट, वी डिसाइडेड टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द turtles and their nest in Maharashtra. That's why this information was very sorrowful, very depressing, and we began to think seriously about it. और वो लोग सोचने लगते इसके बारे में, और क्या डिसाइड करते हैं, we decided to undertake a project of the protection. इसलिए they decided that we would make a project and which would be working for the protection and conservation of turtles and their nest in Maharashtra. महाराष्ट्र में टर्टल्स के एग्स को प्रोटेक्शन किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कैंपेन बनाया, ऐसा उन्होंने
एक आइडिया निकाला, एक इन्फॉर्मेशन दिया. वी हैड नो एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द सी टर्टल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरटुक द स्टडी ऑफ टर्टल्स. उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, कोई भी अनुभव नहीं था टर्टल्स को पालने के बारे में. दैट्स वाई दे स्टडी फुल अबाउट द turtles livelihood, their foods and all that. And we contacted institutes that work for the protection of the turtles in India. So they contacted, they met with the person, the institute which were working for the protection of the turtles in India. And the next step was launching a turtle protection campaign at Belas Taluka, Mandangarh district, Ratnagiri. And next step, they took, they launched a turtle protection campaign at Belas Taluka, Mandalgarh district, Ratnagiri. This was done with the support and cooperation of the forest department. It was happened because of the cooperation, coordination of the forest department as a part of the as a part of campaign. Campaign means what? Any series of action or events that are meant to achieve something. Okay, so they started campaign, and a few local people were specially appointed to look for the turtle nest on the beach in the morning. And for that sake they appointed, they selected some persons, there are some people from village only, and they decided gave some works regarding turtles to them. Then they came across a nest, and they had to carefully remove the eggs from the nest and then bury them again in a similar pits, but one protected with wire fencing. सो दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग एग्स, एंड वो वहाँ से जहाँ पे वो ले करती थी वहाँ से निकाल करके दूसरे पिट में रख देते थे, और एक एंड दे वेर प्रोटेक्टिंग विथ फायर फेंसिंग. वो एक एक वायर फेंसिंग के थ्रू इसको मतलब उसी सीरीज़ में वो क्या करते थे, उसको प्रोटेक्ट करते थे. दे हैड टू वॉच ओवर द प्रोटेक्टेडनेस टू प्रिवेंट थेफ्ट्स. वो उनको वो चोरों से बचाते थे और हमेशा ध्यान देते थे कि दे शुड नॉट बी थेफ्ट. And in the first year we could successfully protected 15 nests in this manner, or in this way they protected how many nests? 50 nests. And when the baby hatched out of the eggs, what an event that was. और जब उसमें से बेबी हैच मतलब होता है अंडे से बाहर आ गए, तो रियली इट वॉज वेरी अमेजिंग इवेंट, एंड द होल विलेज रस्ट टू द बीच टू विटनेस द स्पेक्टिकल्स. विटनेस मतलब देखने के लिए, स्पेक्टिकल्स मतलब मिरेकल. ये जो अमेजिंग थिंग थी, जो मिरेकल था, वो देखने के लिए कि अंडे से कैसे टर्टल्स बाहर आ गए और चलने लगे. इट वॉज वेरी रियली ब्यूटीफुल सिनेरियो. उसको देखने के लिए वो लोग रश करते दौड़ के आते हैं. व्हेन द टाइनी टर्टल्स हैचलिंग हरीड अक्रॉस द सिल्वर सैंड टू मीट द रोलिंग बाउंडेड सी. जब वो सी को जाने के लिए टर्टल्स जो छोटे छोटे होते हैं हैचलिंग के बाद, वो सिल्वर सैंड मतलब होता है जो चमकीला जो सैंड होता है उस पर मिट्टी पर चलते हैं. व्हाट एन ओवेशन. ये बहुत ही प्रेजिंग होता है. ओवेशन मतलब होता है प्रेजिंग, प्रेसफुल होता है. एंड दे रिसीव्ड फ्रॉम दी ऑनलुकर्स. वहाँ पे जो खड़े जो गांव के लोग रहते हैं वो उनको ओवेशन देते हैं, प्रेस करते हैं. रियली इट वाज the scene was very beautiful. Some of the elderly villagers confessed that though they had seen and stolen turtles egg right from their school days, and it was for the first time that they had seen the hatchlings rushing to the सी. और वहाँ के कुछ लोग जो ओल्ड हो चुके रहते हैं विलेजर्स के, वो कन्फेस करते हैं, वो बताते हैं कि हम लोग ने स्कूल टाइम से ही टर्टल्स को नहीं देखा, टर्टल्स के इसको नहीं देख पाते थे क्योंकि ये चोरी हो जाते थे. एंड ये पहली बार उनकी हैचलिंग को हमने देखा है, और कैसे वो समुद्र को मिलने को जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं. ये बहुत ही प्रेसफुल है. There are 7 types of sea turtles in the world, 5 of which are found in India. यहाँ पर अगर देखा जाए तो they are saying that कि they are informing us that कि 7 types के turtles, sea turtles पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, और जिसमें से 5 जो होती प्रजाति वो इंडिया में पाई जाती है. The olive redley turtles nest along the entire coastline of Maharashtra. और महाराष्ट्र में सिर्फ ओली रेडली पाया जाता है. एंड ग्रीन टर्टल्स एंड द हॉकबिल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. और वहाँ पर ग्रीन टर्टल्स और हॉकबिल्स भी पाया जाता है.
An amazing characteristics of turtle is that when the female turtles reaches maturity. एक और बहुत ही अमेजिंग बात है टर्टल्स के बारे में कि जब फीमेल टर्टल्स बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, एडल्ट हो जाती है, एंड दैट इज़ नियरली आफ्टर अ गैप ऑफ 15 ईयर्स, जब 15 साल की हो जाती है, शी रिटर्न्स टू द शोर टू ले हर एग्स एट द सेम प्लेस वेयर शी वॉज बॉर्न, और उसी जगह पे आती है जहाँ पर वो बॉर्न हुई रहती है, पहले जहाँ पर जन्म ली रहती है वहाँ पे वापस आती है, एंड द फीमेल कम्स ऑन द शोर जस्ट टू मेक अ नेस्ट इन द सैंड दैट ले हर एग, और वहाँ पर आकर नेस्ट बनाती है जहाँ पर कि वो अपने एग्स को ले करती है, एंड इमीडिएटली रिटर्न टू द सी, और तुरंत सी के पास, सी में चली जाती है. शी डज़ नॉट रिटर्न टू द नेस्ट आफ्टर दैट, और उसके बाद कभी वापस नहीं आती है. द एग्स हैच आफ्टर अ पीरियड ऑफ 45 to 50 डेज, और जब एग्स हैच हो जाते हैं यूजुअल नेचुरल हीट, क्योंकि वो नेचुरली हैच होते हैं हीट से, जो नेचुरल हीट होता है उससे हैच हो जाते हैं. इननमरेबल डेंजर्स अवेट द लिटिल हैचलिंग इन अ डीप सी एंड दे हैव टू फेस देम ऑल ऑन देयर ओन, एंड और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा डेंजर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है छोटे छोटे टर्टल्स को, बिकॉज ओशन में सर्वाइव करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर देम, एंड दे आर सो टाइनी एंड वेरी लिटिल क्रिएचर, सो देयर सर्वाइवल रेट इज़ देयर फोर इज़ वेरी लो. इसलिए उनका जो अगर जीवन की कहानी कहें तो बहुत ही कम होता है. इट्स वेरी लो एज अ रेट, बिकॉज एट जस्ट 1 or 2 टर्टल्स आउट ऑफ द 1000, क्योंकि 1000 में से 1 या 2 टर्टल्स ही सर्वाइव कर पाते हैं. सो टर्टल्स परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. टर्टल का जो हमारे इकोलॉजी है, जो मैरिन इकोलॉजी है, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है. दे कीप द सी क्लीन, पहली तो बात वो समुद्र के पानी को साफ सुथरा रखते हैं, एंड दस दे ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मैरिन इकोलॉजी. मैरिन इकोलॉजी को बैलेंस रखते हैं, एंड कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स इट इज़ वाइटल टू अंडरटेक दिस प्रोडक्शन देयर प्रोटेक्शन ऑन अ लार्ज स्केल. और ये सब बातें जानने के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि बहुत बड़े लेवल पे उनका ये ध्यान रखना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए मैसेज कि उनका प्रोटेक्शन बहुत लार्ज लेवल पे होना चाहिए, एंड पीपल दोज आर नॉट अवेयर विद दैट about this creature and their importance, those are really they do the function for balancing the ecology of marine, so obviously they should be protected. So students, I stop this lecture over here, and in this lecture I will continue the rest paragraph. Till then, goodbye, thank you.